Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 31st from the class of Communication Skills, Development and Learning. Let's have a quick recap of what we have learned earlier. Earlier we understood a news that was a world's oldest message in the bottle. That news was from Australia, Perth. There was a beach where a lady found a bottle in which there is a message, and that was supposed to be or considered to be the most old message or the oldest message ever recorded ever stored inside a bottle and sent. But later on it was found that it was a scientific research in Germany in 1800s. So as per that news we understood what is the full form of SOS. Many people say SOS is a code that is used in order to gain help, or when you are trying to ask for help from someone, or uh, you are in distress and you are asking for help, you use SOS. And many people have their own full form. Some say SOS is save our souls, or something like that, but it was a Morse code that was also generated in 1800s, and it was a universal Morse code for distress when you ask for help. And in the next section, uh, mm, from the session previous to the podcast, we understand the phrase flattening the curve. Then business English, we have language for refusing a request, word root analysis of these four words, and were started with the modifiers, and we understood the misplaced modifier. And the session that we had yesterday was on body language. It was more focused on non-verbal communication skills, and it was dedicated to body language from a psychologist who is Mohsin Khan. So uh, let's start with the session today. uh, as I have already informed all of you that this will be a very short session. We will have first the word root analysis, and then we will talk about modifiers. So word root analysis and pronunciation. The first is LUNA and AI. The second is macro. Third is mag or magna or magni, and the fourth is mal, MAL or MALE, mal. It's not the gender male, it's mal. We will understand in more details. Let's go with the first word, that is LUNA or I. So anything that has LUNA or I, it's related to moon. Like lunar, lunar is relating to moon. The lunar scape is the surface of moon. Scape is surface, lunar is moon, so lunar scape is surface of moon. Lunatic. So lunatic is insane, but he's a particular kind of insane. लूनेटिक पागल को कहा जाता है, लेकिन उस पागल को जो चांद को देख के पागल होता है. नॉर्मली हम पागल के लिए इंसेन यूज करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मैक्रो. सो मैक्रो का ऐसे भी तो हम मोबाइल्स में आजकल सुनते हैं मैक्रो लेंस, या हम कई बार सुनते हैं मैक्रो यूज किया इसने और एक कीड़े की इमेज इतनी बड़ी दिखा दी, या पोलन ग्रेन्स दिखाए मैक्रो यूज करके. सो मैक्रो इज लार्ज और ग्रेट, बड़ा या बेहतर. सो मैक्रो इवोल्यूशन इज लार्ज स्केल इवोल्यूशन, जो पूरी लार्ज स्केल पे हुआ हो. मैक्रो मॉलिक्यूल एक बड़े मॉलिक्यूल को कहा जाएगा, लार्ज मॉलिक्यूल. जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू हीलियम. हीलियम का मॉलिक्यूल छोटा होता है. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ओवरऑल फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी. इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ऑफ द टॉपिक के इकोनॉमी के लिए हम फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी क्यों यूज करते हैं, हम ब्रांचेस या डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमी क्यों यूज नहीं करते. देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपकी फिजिकल और मेंटल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट करता है. इसीलिए हम इसको फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं. आई होप इट इज क्लियर. चलो नेक्स्ट की तरफ आते हैं. दैट इज मैग और मैग्ना और मैग्नी. सो ये भी मैग्निफिकेशन जैसा या मैग्नीफाइड जैसा ही है, लार्ज या ग्रेट. मैग्नीफाई इज मेक लार्जर, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना. मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट होता है ग्रैंड, ऊंचे ओहदे वाला, ऊंची शान वाला.
शानदार जिसको हम कहते हैं, एंड देन मैग्नेट। अब ये वाला जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट वो चुंबक मैग्नेट नहीं है। हमने कई बार सुना होगा वो बिजनेस टाइकून है, वो बिजनेस मैग्नेट है, वो अट्रैक्ट करता है इंडस्ट्रियलिस्ट को बाहर से, जैसे टाटा है, रतन टाटा हैं, या फिर अजीम प्रेम जी हैं विप्रो के, HCL के शिव नादर हैं, उसके बाद अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, मतलब इस तरह से ये एक बिजनेस या इंडस्ट्री मैग्नेट्स होते हैं। ऐसे लोग जो पावरफुल होते हैं और जो बिजनेस या इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करते हैं, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। सो दिस इज मैग्नेट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस माल और MALE। अब माल का सिंपल सा मतलब याद रखना, बुरे को कहा जाता है या बीमार को, बैड, इल या रॉन्ग। माल कंटेंट इज रॉन्ग कंटेंट। मैलिशियस इज शोइंग स्ट्रॉन्ग इल विल। मैलिशियस हो गया जिसकी नीयत खराब हो, बुरी नीयत वाला। एंड माल इवोलेंट होता है ऐसा आदमी जो बुरा करने की इच्छा रखता हो। ठीक है, हम just give me 1 second, there is some new guy today. Okay, so आप 15, आपके गांव में 15,000 लोग हैं, तो 15,000 में कितने नौजवान होंगे? okay, so this is just give me 1 second. So malevolent is having wish to do evil to others. I hope this is clear to everyone. Is there any question? Okay, so since this section is complete, we will go to the grammar section where we will understand the dangled modifiers today. So पहले तो बात आती है modifiers। modifiers वो words होते हैं जो दूसरे words या दूसरे phrases के ऊपर extra information या extra emphasis डालने के काम आते हैं, उन words को modifiers कहा जाता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स यूजुअली वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरे वर्ड्स पे एफर्ट, एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, और आज हम पढ़ेंगे डैंगल्ड मॉडिफायर्स। अब डैंगल्ड मॉडिफायर को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। सो दिस इज द एग्जांपल, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए सिल्क गाउन, ही फाउंड हिज वाइफ अट्रैक्टिव। ये एग्जांपल मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, जब हमने मॉडिफायर्स को शुरू किया था, ये एग्जांपल मैंने तब भी शुरू किया था। अब देखो इसमें एक चीज समझने वाली है। मैंने कहा था डैंगल्ड मॉडिफायर जो होते हैं, इफ यू रिमेम्बर 2 सेशंस बैक जब हमने मॉडिफायर्स को शुरू किया था, मैंने कहा था डैंगल्ड मॉडिफायर यूजुअली एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा या फिर एक फ्रेज होगा जो कि किसी और सेंटेंस के साथ भी कनेक्टेड होगा। अब ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड ही फाउंड हिज वाइफ अट्रैक्टिव, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या एक कंप्लीट क्लॉज है। तो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। सो यहाँ से हमें तो पता लग जाएगा कि मॉडिफायर एक्चुअली है क्या। ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन ये एक मॉडिफायर है। अब क्योंकि ये क्लॉज है इसलिए डैंगल्ड मॉडिफायर है। बट ये वाला जो मॉडिफायर है ना, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये ही को मॉडिफाई कर रहा है या फिर ये वाइफ को मॉडिफाई कर रहा है? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, कौन बताएगा? सर वाइफ को। हाँ ठीक है, ये वाइफ को मॉडिफाई कर रही है। और आपकी एक्चुअली इंटेंशन सही है कि ये एक्चुअली में वाइफ को मॉडिफाई करना चाहिए, बट ये वाइफ को मॉडिफाई नहीं कर रहा है यहाँ। हम इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे, चक्कर क्या है इसका। सो द इंट्रोडक्टरी फ्रेज इन द अबव सेंटेंस लुक्स एज इफ इट इज मेंट टू मॉडिफाई ए पर्सन और पर्संस। ठीक, बट नो वन इज मेंशन्ड इन दिस फ्रेज। अगर आप इस फ्रेज को अकेले पढ़ोगे तो इसमें ना वाइफ मेंशन्ड है ना हस्बैंड मेंशन्ड है। सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए सिल्क गाउन, कॉमा, he found his wife attractive। तो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए सिल्क गाउन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें कोई भी नाउन या कोई प्रोनाउन मेंशन नहीं है, इसलिए ये इस वक्त किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा, किसी पे ना एम्फेसिस डाल रहा है, ना ही किसी पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल रहा है। किसी को कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं है कि ये किसको मॉडिफाई करेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में जनरल रूल है ग्रामर का कि जब आपके पास एक फ्रेज आ जाता है जिसके अंदर ना नाउन और ना ही प्रोनाउन मेंशन्ड है, तो वो फ्रेज अल्टीमेटली या ऑटोमेटिकली लिंक होता है
उसके नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए सिल्क गाउन यूज इसकी वाइफ के लिए होना चाहिए था, बट एज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये ही के लिए यूज हो रहा है। सो सच इंट्रोडक्टिव phrases because of their position automatically modifies the first noun or pronoun that follows the phrase, as in this case। तो इस केस में क्या है, पहले ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर वाइफ होता ही की जगह तो ये जो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन वाइफ के लिए यूज होता, बट ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन यहाँ ही के लिए यूज हो रहा है, मतलब हस्बैंड के लिए यूज हो रहा है। So, ये आइडिया हुआ सबको कि क्या होता है जब किसी फ्रेज में नाउन या प्रोनाउन मेंशन ना हो। जब भी किसी फ्रेज में या किसी क्लॉज में किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट सेंटेंस के डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या इनकम्प्लीट क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन मेंशन ना हो, तो उस वक्त क्या होता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है अपने टेक्स्ट या उसकी जो बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसको। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन वाइफ को मॉडिफाई करना चाहिए था, वाइफ के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताना चाहिए था, बट यहाँ पर जो ये है ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन ही को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आइडिया हुआ सबको? Just let me know if you are clear about it so that I can move forward. Yes, sir. Okay, तो अब चलते हैं आगे के ये हुआ क्या है इस सेंटेंस में और क्या हुआ है। सो डैंगल्ड मॉडिफायर इज यूजुअली ए फ्रेज, ये एक फ्रेज होता है, और फ्रेज भी कौन सा होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज हुज सब्जेक्ट एंड वर्ब आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है, इसके लिए इस फ्रेज के लिए ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए सिल्क गाउन, इस टाइम इसका जो डायरेक्ट सब्जेक्ट या डायरेक्ट इसका वर्ब है वो ही है, क्योंकि एज पर ग्रामर ये हमेशा इसके बाद वाले फ्रेज में जो पहला नाउन या प्रोनाउन होगा उसी को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है डिटेल डैंगल्ड मॉडिफायर में याद रखने की कि दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, but does not modify any specific word in the sentence or modifies the word wrongly। अब या modifies the wrong word। तो अब ये एक्चुअली में अगर हम देखेंगे ना इसको, अगर हम इसका सेंटेंस एनालिसिस करेंगे तो ये जो सेंटेंस है ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन अ सिल्क गाउन कॉमा, यहाँ तक ये किसी भी चीज को भी मॉडिफाई नहीं कर रहा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली ही को मॉडिफाई कर रहा है। तो होता क्या है, just give me 1 second, there is someone who wants to join this session। तो होता क्या है इसमें, जो वर्स कंडीशन है डैंगल्ड मॉडिफायर की वो ये है कि वो एक रॉन्ग वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हो रहा है इनडायरेक्टली, और आगे आप देखोगे डायरेक्टली भी रॉन्ग वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। तो हमें बस इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो सेंटेंस के अंदर जो हम सेंटेंस को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम हम हमारे फ्रेजेस को किस तरह से प्लेस करते हैं। एक बहुत पॉपुलर सा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि शी वाज कंफ्यूज्ड टू टेल हर मदर व्हाई शी वांट टू गेट मैरिड, एक शी वाज कंफ्यूज्ड व्हाई शी वांट टू मैरी टू हर, शी वाज कंफ्यूज्ड टू टेल व्हाई शी वांट टू मैरी हर मदर। तो ये दो बहुत कॉमन से वो है एग्जांपल्स है डैंगल्ड मॉडिफायर्स की, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि डैंगल्ड मॉडिफायर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होते, और वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, और उसके अलावा वो गलत या तो किसी भी वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को या सेंटेंस के हिस्से को मॉडिफाई नहीं करेगा, और बहुत ही बुरी कंडीशंस में वो किसी गलत वर्ड को मॉडिफाई कर देगा। तो हम आगे चलते हैं इसमें, अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल पढ़ते हैं। जो रितेश ने सबसे स्टार्टिंग में हमें कहा था कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, द कॉन्टेक्स्ट एंड द इंटेंशन इज दैट द वाइफ इज ड्रेस्ड ब्यूटीफुली इन ए सिल्क गाउन। तो ये जो मॉडिफायर है ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए सिल्क गाउन, ये वाइफ को स्पेसिफाई करना चाहिए, वाइफ को मॉडिफाई करना चाहिए, जबकि इस सेंटेंस में ऐसा हो नहीं रहा है। तो इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक आदमी है, उसकी वाइफ जो है वो एक सिल्क गाउन के में ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है, बहुत खूबसूरत गाउन उसने डाला है, और उस आदमी को अपनी बीवी खूबसूरत लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है उस गाउन में। ये इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है या इस सेंटेंस की इंटेंशन है। बट इसकी अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे ना गूगल ट्रांसलेटर पर भी, तो वो बहुत डिफरेंट आएगी, मतलब हमारी इंटेंशन की तो बिल्कुल ऑपोजिट आएगी। और
जैसे मैंने कहा कि इंटेंशन एंड कॉन्टेक्स्ट इज दैट वाइफ इज ड्रेस्ड ब्यूटीफुली इन अ सिल्क गाउन एंड हस्बैंड फाइंड्स हर वाइफ वेरी अट्रैक्टिव लाइक दैट. But here the meaning and the translation of sentence comes out very different from the intention and the context. तो हमारी intention और context जो है, जो author की intention और context है इस sentence को लिखने में, उससे बिल्कुल उल्टा आ रहा है इसका translation भी और इसका context भी. तो ये incorrect sentence है. ठीक है, तो अब इसको correct कैसे किया जाए? यार give me 1 second, मेरे शायद लैपटॉप में कोई दिक्कत आई. Okay, beautiful in a silk gown. Just give me 1 more second. There is someone else who wants to join this session. Okay. So beautifully dressed in a silk gown, he found his wife attractive, or he found his wife attractive, beautifully dressed in a silk gown. अब इन दोनों का ट्रांसलेशन कौन बताएगा और कौन बताएगा कि इनमें से करेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट तो पता लग गया आपको कौन सा है, करेक्ट कौन सा है? Which one is correct? The second one is correct. Yes, second one is correct. Yes, Mariam, बिल्कुल सही. Second one is correct. अब इनकी ट्रांसलेशन कौन बताएगा? Just give me 1 second. There is someone who turned on his mic. Okay. अब इसकी ट्रांसलेशन कौन बताएगा? पहले सेंटेंस की भी और सेकंड की भी, या पहले की कोई एक बता दो, सेकंड की कोई और बता दो. पहले की तो ये इस तरह से बनेगी कि जो आदमी है वो मतलब सिल्क गाउन में है और ब्यूटीफुल ड्रेस है उसकी, सिल्क गाउन, उसमें he found उसमें his उसको अपनी wife बीवी खूबसूरत लग रही है. वेरी गुड. सो रितेश इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो फर्स्ट सेंटेंस है, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन अ सिल्क गाउन, ही फाउंड हिज वाइफ अट्रैक्टिव. इसमें क्या है? सिल्क गाउन आदमी ने पहना हुआ है और आदमी अपनी बीवी को देखकर बहुत उसको अपनी बीवी खूबसूरत लग रही है, जबकि सिल्क गाउन आदमी ने पहना है. और सेकंड सेंटेंस की ट्रांसलेशन, सेकंड सेंटेंस है, ही फाउंड हिज वाइफ अट्रैक्टिव ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन अ सिल्क गाउन. सेकंड की कौन करेगा? सेकंड में उसने अपनी बीवी को जब ये ब्यूटीफुल खूबसूरत सिल्क गाउन की ड्रेस में देखा तो उसने उसको अट्रैक्टिव पाया. बिल्कुल सही. रितेश इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यार मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो गूगल ट्रांसलेटर यूज करो, आप सबके पास फोन है, सो आप ऑन स्पॉट उसको ट्रांसलेट करो. इससे क्या होगा, अगर इनकेस मैं भी कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा, एंड यू कैन मॉडिफाई मी एज वेल. तो इसकी अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा है. सो एवरीबॉडी नोस व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वाज इनकरेक्ट. तो ये है इसका ट्रांसलेशन. पहला ये देख लो, रेशम के गौन में खूबसूरती से सजे उन्होंने अपनी बीवी को आकर्षक देखा पाया. तो यहाँ पर जो है ना, आकर्षक बंदा वो खुद हस्बैंड है, वाइफ नहीं है. वाइफ को वो आकर्षक पा रहा है, बट सिल्क का गाउन हस्बैंड ने खुद डाला हुआ है. और यही रेशम के गाउन में खूबसूरती से सजे हुए उन्होंने अपने पत्नी को आकर्षक पाया. या फिर उर्दू में हम देखेंगे तो रेशम के लिबास में खूबसूरती से मलबूस उसे अपनी बीवी को मतलब उसने अपनी बीवी को दिलकश पाया. तो ये जो है ना, बीवी बेशक उसको दिलकश लग रही है, उसकी वाइफ उसको अट्रैक्टिव लग रही है, मगर सिल्क का गाउन हस्बैंड ने खुद डाला हुआ है. और ये जो सेंटेंस है, ही फाउंड हिज वाइफ अट्रैक्टिव ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन अ सिल्क गाउन, उन्होंने अपनी पत्नी को आकर्षक खूबसूरती से रेशम के गाउन में तैयार किया या रेशम के गाउन में पहने हुए देखा. तो ये जो सेंटेंस है, इसमें क्या है, सिल्क का गाउन उसकी वाइफ ने डाल दिया, जो कि हमारी इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट था. एक्चुअली हम यही कहना चाहते थे कि सिल्क का गाउन जो है वो वाइफ ने पहना हुआ है और आदमी अपनी बीवी को अट्रैक्टिव पा रहा है उस टाइम. वैसे ही इसका रोमन इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन और उर्दू में देखो, उसने अपनी बीवी को दिलकश देखा. ये तो करेक्ट है बिल्कुल हमारे कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन के साथ. अब जिसने, तो जिसने कौन है? जिसने यहाँ पर बीवी है. जिसने खूबसूरत रंग का लिबास, रेशम का लिबास पहना हुआ था. तो ये उर्दू में एक्स्ट्रा डिटेल आ जाती है. तो ये है, उसने अपनी बीवी को दिलकश देखा, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिलकश देखा, और जिसने मतलब वाइफ ने खूबसूरत रंग का या फिर एक सिल्क गाउन, ब्यूटीफुल सिल्क गाउन उसने डाला हुआ था. सो आई होप ये क्लियर है सबको. इज देयर एनी क्वेश्चन?
सर इसको जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज थी तो हम्म उसको यहाँ भी फिट कर सकते थे, जैसे सर ही फाउंड हिज वाइफ, फिर कॉमा लगा के ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन, फिर कॉमा। एग्जैक्टली देखो यही इसकी खूबसूरती। आपको मॉडिफायर, अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना कि आप डिपेंडेंट क्लॉज को कहाँ प्लेस कर रहे हो, दैट मीन्स आपको मॉडिफायर एक्चुअली में समझ आ गए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। आपका कहना बिल्कुल सही है। हम इसको कई सारे वेज में करेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वे नहीं है इसको करेक्ट करने का। अल्टीमेटली करना क्या है, जो आपकी इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। और अगर आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट के साथ चल रहा है तो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही आएगा, अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग जो है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, तो हमें ये चीज का फर्क करना। देखो, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन ही फाउंड हिज वाइफ वेरी अट्रैक्टिव। सो मेरे लिए, अगर मैं मॉडिफायर्स की पहचान नहीं रखता तो मेरे लिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन की तरफ जा रहा है, हालांकि कंटेंट और इंटेंशन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि ही फाउंड हिज वाइफ ड्रेस्ड इन ड्रेस्ड इन सिल्क, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन सिल्क गाउन वेरी अट्रैक्टिव, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है कि उसने अपनी बीवी को और अगर उसको आप ट्रांसलेट करोगे, जो सेंटेंस आप बोल रहे हो उसका ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा, उसने अपनी बीवी को सिल्क के गाउन में बहुत खूबसूरत पाया। तो उसमें उसने सिल्क का गाउन पहन लिया हुआ ऑलरेडी और वो अपने हस्बैंड के सामने खड़ी है और हस्बैंड उसको एक्चुअली में देख रहा है बिल्कुल तैयार होकर। यहाँ पर वो तैयार हो रही है, आपके सेंटेंस में वो तैयार हो चुकी है, उसने गाउन पहन लिया है। सो इज इट क्लियर? राइट सर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है। डैंगल्ड, जो डैंगल्ड मॉडिफायर्स होते हैं वो कई बार इम्प्रॉपरली क्लॉज में भी आ जाते हैं। यहाँ पर तो प्रॉपर हमें दिख रहा था ना कि डिपेंडेंट क्लॉज है और वो डैंगल्ड मॉडिफायर है, लेकिन अब जो हम आगे देखेंगे वो एक इम्प्रॉपरली प्लेस्ड होंगे क्लॉजेस में। जैसे although nearly finished although nearly finished we left the game early because we were worried about our sick dog। अब इसको कौन समझाएगा हमें कि ये सेंटेंस सही है या गलत? देखो, ये नहीं सोचना कि पहला है तो गलत ही होएगा, सही इसके बाद आएगा, ये नहीं सोचना। बट इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा या इसको कौन समझाएगा? आप अपना फोन यूज करो, गूगल ट्रांसलेटर यूज करो, कुछ भी करो, बट ये सेंटेंस समझाओ कि ये क्या है। कौन बताएगा, रक्षंदा या मरियम या फैसल? नजाकत? सर, जी गेम बोलो। खत्म होने वाला था पर हमने वहाँ से जल्दी शुरू कर दिया था क्योंकि हम अपने सिक डॉग के लिए वरीड थे इसलिए। देखो, कुछ कुछ सही है। मैं आप बताता हूँ क्या है इसका चक्कर। देखो, पहले तो बात आती है कि इंटेंशन क्या है यहाँ पर और कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन ये है कि वीडियो गेम खत्म हो, या फिर ये जो भी गेम है, फुटबॉल है या क्रिकेट है, कुछ भी है, ये गेम खत्म होने वाला था, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन हमने उसको खत्म होने से पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि हम अपने, जो हमारा डॉग है, जो बीमार डॉग है, उसके लिए हम वरीड हैं, उसके लिए हम परेशान हैं। मतलब उसको डॉक्टर वॉक्टर के पास ले जाना होगा या उसको देखना होगा। सो हमने, जो गेम हमारा खत्म होने वाला था, हमने उसको खत्म होने से पहले ही छोड़ दिया। बट अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे ना, इस सेंटेंस में इसको कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन तो आपको समझ आ रही है, बट इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सेंटेंस जो कन्वे कर रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है अपने कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन से। ये एक एक्चुअली में इनकरेक्ट सेंटेंस है इसके कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन के हिसाब से। मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूँ। देखो, ऑल्दो नियरली फिनिश्ड, ठीक है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक इम्प्रॉपरली प्लेस्ड डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। अगर आप इसको अलग भी कर दोगे ना तो ये कुछ कन्वे नहीं करेगा। So we left the game early because we were worried about our sick dog. So we left the game early because we were worried about our sick dog is main clause. Although nearly finished is dependent clause. अब इसका अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे हिंदी में, यद्यपि लगभग समाप्त हो गया, लेकिन क्या समाप्त हो गया ये सेंटेंस कहीं नहीं बता रहा। डॉग समाप्त हो गया या गेम समाप्त हो, मतलब डॉग फिनिश हो गया या गेम फिनिश हो गया, तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये कहीं पर इस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। हमने खेल छोड़ दिया क्योंकि हम अपने बीमार कुत्ते के
बारे में चिंतित थे। तो मेन क्लॉज तो इसका बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमने छोड़ दिया गेम क्योंकि हम अपने डॉग के बारे में परेशान थे। बट ऑल्दो नियरली फिनिश, क्या फिनिश हो रहा है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है इस सेंटेंस को देखकर। इसका अगर आप उर्दू में ट्रांसलेशन देखोगे, अगरचे करीब करीब खत्म होने के बाद हमने खेल छोड़ दिया क्योंकि हम अपने बीमार कुत्ते के बारे में परेशान थे। अब अगरचे करीब करीब खत्म होने के बाद तो क्या खत्म हो रहा है, एक तो ये नहीं हमें पता, और दूसरी चीज हमने खेल छोड़ दिया, तो मतलब हमने गेम छोड़ दी, लेकिन ये भी नहीं कन्वे हो रहा कि गेम खत्म होने वाली थी या आधी कंप्लीट हो चुकी थी या गेम शुरू हुई थी। ठीक है, जबकि हमारी इंटेंशन ये थी कि हमने ये बताना कि गेम खत्म होने वाली थी और हमने उसके खत्म होने से पहले ही उसको छोड़ दिया। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं। देखो, ऑल्दो द गेम वाज नियरली फिनिश, यहाँ पर हमने मेंशन किया खुद से कि भाई गेम फिनिश हो रही है। पहले सेंटेंस में ये मेंशन नहीं था कि फिनिश क्या हो रहा है। सो ऑल्दो द गेम वाज नियरली फिनिश्ड वी लेफ्ट अर्ली बिकॉज वी वर वरीड अबाउट अवर सिक डॉग। तो बाकी तो मेन क्लॉज इसका सेम है कि वी लेफ्ट अर्ली बिकॉज वी वर वरीड अबाउट अवर सिक डॉग, बट इसका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक इम्प्रॉपरली प्लेस्ड क्लॉज था क्योंकि उसके अंदर ये चीज मेंशन ही नहीं हो रही थी कि खत्म क्या हो रहा है, गेम खत्म हो रही है या डॉग बीमार था और डॉग की वफात हो गई, डॉग मर गया, ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी। इसकी ट्रांसलेशन देखो आप, यद्यपि खेल लगभग समाप्त हो गया था। देखो, पहला है यद्यपि लगभग समाप्त हो गया था, मतलब कि हमें मालूम नहीं है क्या समाप्त हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमें पता कि खेल समाप्त हो गया था। हमने जल्दी छोड़ दिया क्योंकि हम अपने बीमार कुत्ते के बारे में चिंतित थे। और इसका उर्दू देख लो, अगरचे खेल करीब करीब खत्म हो चुका था, यहाँ पर है अगरचे करीब करीब खत्म हो चुका था और यहाँ पर है अगरचे खेल करीब करीब खत्म हो चुका था, लेकिन हमने जल्दी से चले लेकिन हम जल्दी से चले गए क्योंकि हम अपने बीमार कुत्ते के बारे में परेशान थे। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि हमने गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और हमने गेम को छोड़ दिया, हमने उसके फिनिश होने से पहले ही वहां से चले गए। क्लियर है सबको? इज देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? समझ आया सबको? पहले ये बताओ, डाउट तो खैर देखते हैं। रक्षंदा या उरूस या फैसल, आपको समझ आया सबको कि ये क्या है, मतलब डिफरेंस क्या पड़ता है, क्या डिफरेंस आ जाता है सिर्फ एक फ्रेज को इधर से उधर करने में? यस सर। चलो ठीक है, तो जो भी आप ट्रांसलेशन बनाते हो ना अपने माइंड में, उसको 3-4 बार सोचना और फिर देखना कि वो एक्चुअली में सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। जैसे हमने मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स में देखा था ना, सिर्फ ओनली की पोजीशन चेंज करने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर पूरे का पूरा फ्रेज का पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। हम चलते हैं अब इसके आगे। इनकरेक्ट और करेक्ट पता लग गया सबको? तो नेक्स्ट है, अभी कई बार क्या होता है, सर्टेन टाइम्स वी राइट डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस और एडजेक्टिव्स व्हिच मॉडिफाई द नाउन दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द सेंटेंस। अभी पिछले सेंटेंस में क्या था, पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था, ऑल्दो नियरली फिनिश्ड वी लेफ्ट द गेम। सो ऑल्दो नियरली फिनिश्ड जो डिपेंडेंट क्लॉज था, उसमें हमने कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं किया था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि फिनिश क्या हो रहा है, लेकिन कई बार हम डिस्क्राइब भी करते हैं कि फिनिश क्या हो रहा है, फिर भी हमारे सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई होना चाहिए, बट डायरेक्टली वो किसी और चीज को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज माय वॉलेट वाज लॉस्ट। तो यहाँ पर एम्फेसिस किस पे है? देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर माय वॉलेट वाज लॉस्ट डिपेंडेंट क्लॉज है? कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज? So walking back from the village, ये वॉकिंग बैक फ्रॉम dependent द clause. विलेज डिपेंडेंट क्लॉज है और यही हमारा मॉडिफायर है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा गलत है, बट गलत है। देखो, हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी इंटेंशन ये है कि हम विलेज से वापस आ रहे थे और वापस आते वक्त हमारा वॉलेट खो गया। ठीक है, तो ये हमारी इंटेंशन है। इस सेंटेंस को पढ़ के हमारा इंटेंशन या कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। बट अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे ना, इसका ट्रांसलेशन लगभग वैसे ही बनेगा, बट एग्जैक्टली वैसे नहीं बनेगा। तो ये इसका जो करेक्ट वे है इसको बोलने का, वो ये है कि व्हेन आई वाज वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज
माई वॉलेट वॉज लॉस्ट। देखो इन दोनों में फर्क है, इनकी अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे ना वो ऑलमोस्ट सेम आएगी, 99% सेम आएगी, बट फर्क क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, सिंपल सा है। देखो यहाँ पर क्या, वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज, तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन कोई भी डिस्क्राइब्ड नहीं है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये अल्टीमेटली अपने जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन इसके सामने आएगा ये उसको मॉडिफाई करेगा, जबकि हमने मॉडिफाई किसको करना है, हमने वॉलेट को करना है, ठीक है, हमने खुद को नहीं मॉडिफाई करना है। सो व्हेन आई वाज वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज माय वॉलेट वाज लॉस्ट, जब मैं वापस आ रहा था अपने गांव से तब मेरा जो वॉलेट है वो खो गया, या फिर वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज, आप इसको ऐसे रहने दो, आई लॉस्ट माय वॉलेट, मैं अपना वॉलेट खो गया। तो ये चीज क्लियर हुई सबको? ये बहुत माइनर सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मतलब ये कोई इतना बड़ा एरर नहीं है, बट ऑब्वियसली एरर है क्योंकि ये सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देगा। अगर आप यही एक सेंटेंस किसी अंग्रेज को बोलोगे ना, वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज माय वॉलेट वाज लॉस्ट, सो ही विल, वो अपने सोच में बैठ जाएगा कि यार वापस आते टाइम रास्ते में खोया या पहले खो गया और फिर मैं वापस आने लगा अपने विलेज से, तो ये दो कंडीशंस हैं। लेकिन अगर आप उसको ऐसे बोलोगे ना, व्हेन आई वाज वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज माय वॉलेट वाज लॉस्ट, वो समझ जाएगा कि आपका वॉलेट जो है वो रास्ते में खोया वापस आते वक्त, या फिर वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज आई लॉस्ट माय वॉलेट, सेम मीनिंग है। बट जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज माय वॉलेट वाज लॉस्ट, तो माय वॉलेट वाज लॉस्ट का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है कोई भी इसके साथ, वॉकिंग बैक फ्रॉम द विलेज के साथ। तो क्लियर हुआ सबको ये? इज देयर एनी डाउट फ्रॉम? चलो, तो ये इनकरेक्ट है, ये दो इसके करेक्ट फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, when purchasing a computer system the wide variety of features and configurations overwhelms many people। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और 99.9% लोग इसको सही बोलते, जबकि ये गलत सेंटेंस है। अब इसमें गलती क्या है, आप मुझे गलती बताओ क्या है इसमें। when purchasing a computer system the wide variety of features and configurations overwhelms many people। तो इसमें क्या है, अपना मिस्टेक क्या है इसमें, या फिर इसका कॉन्टेक्स्ट या इंटेंशन क्या? पहले तो यही समझो कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम क्या बोलना चाहते हैं, या जो ऑथर है इस सेंटेंस का वो क्या बताना चाहता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी इंटेंशन क्या। देखो उसका कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन ये है कि वो ये बताना चाह रहा है सबको कि जब भी कंप्यूटर को खरीदा जाता है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम खरीदता है, तो लोग बहुत उनको वैरायटी मिलती है फीचर्स की और कॉन्फ़िगरेशंस की, और इससे वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मिस्टेक क्या है, एनीवन हैज एनी आइडिया? मतलब आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करो, देखो अगर गूगल ट्रांसलेटर नहीं यूज करना तो बिंग ट्रांसलेटर है एक, उसको यूज कर लो, या इस सेंटेंस को उठाकर ग्रामरली में डाल दो, सेम सेंटेंस टाइप करो, वो आपको एरर भी दिखा देगा इसमें क्या है। अगर एडवांस वर्जन नहीं हुआ तो बेसिक एरर तो दिखा देगा। इसका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जब लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ फीचर्स उसको मिलते हैं, लोगों को, और कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं, और उससे वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। लेकिन इसको कहें कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या। द फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस आरंट परचेजिंग कंप्यूटर सिस्टम, पीपल परचेज कंप्यूटर सिस्टम। देखो अब है क्या, व्हेन परचेजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज किसको मॉडिफाई करेगा, द वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। जबकि वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, ये पीपल को मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि वैरायटी, ये वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस नहीं खरीदते कंप्यूटर, लोग कंप्यूटर खरीदते हैं। तो यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस की जगह पीपल आना चाहिए था। इस फ्रेज के बाद पीपल आना चाहिए था। वही पहला वाला रूल जो मैंने आपको कहा कि जब भी एक क्लॉज में उसका नाउन या प्रोनाउन डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो वो अपने जो उसके साथ वाला क्लॉज है उसके पहले नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पर पहला नाउन है द वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स। तो व्हेन परचेजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम द वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स, इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे या उर्दू में करोगे तो ये ऐसा कुछ इस तरह से बनेगा कि जब भी कंप्यूटर वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस कंप्यूटर सिस्टम को खरीदते हैं तो लोग उनसे ओवरवेल्म हो जाते हैं। जबकि ऐसा हो, सेंटेंस ये एक बहुत
इनकरेक्ट सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस इसका है when purchasing a computer system, many people become overwhelmed by the wide variety of features and configurations. तो देखो सिर्फ एक छोटे से फ्रेज को इधर से उधर रखने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ. देखो अब यहाँ पर क्या है, when purchasing a computer system, ये हमारा मॉडिफायर है, डैंगल्ड मॉडिफायर. और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है ब्लू कलर के सेंटेंस में? ये पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि होना भी चाहिए. येलो कलर के सेंटेंस में ये वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस को मॉडिफाई कर रहा है. सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है. आई होप ये क्लियर है सबको. किसी को डाउट है इसमें? इज देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट? सर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, when people purchasing a computer system, Exactly. a wide When variety people of features. purchase the computer system, there is a wide variety of features and configurations by which people are overwhelmed. Yeah, when purchasing a computer system, people, हाँ मतलब अब इसको वैसे भी लिख सकते हो. बस एक चीज याद रखनी है आपने इसमें कि जो फ्रेज है ना when purchasing a computer system, ये people को वो करना चाहिए मॉडिफाई. मतलब ये लोगों को मॉडिफाई करना चाहिए क्योंकि लोग खरीदते हैं कंप्यूटर को. फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए. इसका एक इनकरेक्ट वर्जन और भी है. देखो हम इसको, अगर मैं इसको ऐसे बोलता, when people purchase a computer system, there is a wide variety of features and configurations. Sorry, when people purchase a computer system, there is a wide variety of features and configurations by which people are overwhelmed. तो ये भी ऑलमोस्ट एक इनकरेक्ट वर्जन है इसका. इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो इसका डिपेंडेंट क्लॉज है वो फिर से फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस को मॉडिफाई कर रहा है. तो जो आप कह रहे हो ना कि व्हेन परचेजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम या फिर व्हेन पीपल परचेज ए कंप्यूटर सिस्टम, मेनी पीपल बिकम ओवरवेल्म्ड बाय द वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन. सिर्फ इतना सा फंडा इसका कि व्हेन परचेजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम वाला जो क्लॉज है उसके बाद जो नेक्स्ट नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए वो पीपल आना चाहिए, ना कि फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस. क्लियर हुआ सबको? Yes. Yeah. पक्का या ऐसे ही मतलब? मुझे यस इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा यार. No, it's clear. इट्स क्लियर. ओके. Yes, sir. तो यस आज हम इतना ही रखेंगे. हाँ ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है. तो चलो आज हम इतने रखेंगे. इट वाज मेंट टू बी अ वेरी शॉर्ट सेशन बट 45 मिनट्स, आई थिंक 40 मिनट्स का तो हो ही गया. So we shall meet once again in the next session. Thank you very much. You have been very wonderful as always, very generous and very patient. अगर in case किसी को कोई भी doubt हो, please let me know on WhatsApp. You have my WhatsApp number, you have my email and you have my phone number as well. चैनल की किसी भी वीडियो पे जाकर आप अपना डाउट लिख दो, जो कि आज तक किसी ने किया नहीं. बट अगर डाउट है किसी को तो प्लीज लेट मी नो. ईमेल्स आपकी आती रहती है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. व्हाट्सएप मैसेजेस आपके बहुत सारे आते हैं. So we shall meet once again on Tuesday. Thank you very much. Have a nice time. Bye bye.